Welcome back, students, on my YouTube channel. So, in this video, also, we will discuss some more interesting questions that are important from exam point of view as well. So, without wasting time, let's continue. So, what question number one is saying? The path of a ray of light coming from air passing through a rectangular glass slab traced by four students shown as A, B, C, and D in the figure. So, which one of them is correct? So, you all can see that it is a rectangular glass slab. चारों बच्चों ने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से एक्सपेरिमेंट करा है. तो अगर आपने एक्सपेरिमेंट करा होगा या फिर रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ा भी होगा, देन यू माइट नो अबाउट दिस, राइट. अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है लाइक दिस, then if ray of light is falling over it, this is your incident ray, then normal, then it is going from rarer to denser medium, then it will bend towards the normal, then again normal at the surface. Now it is going away from the normal. So you can see that incident ray and the emergent ray, they are parallel to each other. So this is your incident ray. Incident ray is there, and this one is the emergent ray. So this condition must be satisfied. So whichever diagram is satisfying this condition, that incident ray and the emergent ray are parallel to each other, that will be our correct answer. So you can see clearly only option number B student diagram is showing the correct behavior of incident ray and the emergent ray. So option number B is the correct answer, because only in that diagram incident ray or emergent ray, they are parallel to each other. Okay, let's move to the next question. Question number 2. So what is it saying? You are given mustard oil, glycerine, kerosene oil, so and light rays falling one by one in all of these media obliquely. हर किसी पे लाइट हम फॉल करा रहे हैं. सो आपको बताना है इनमें से किस मीडियम में लाइट सबसे ज़्यादा बेंड होगी. सो यू ऑल नो दैट बेंडिंग मीन्स वो अपने इनिशियल पाथ से कितना बेंड होगी. यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात नहीं हुई है, यहाँ पर बात हुई है बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ. ओके, एंड यू ऑल नो दैट बेंडिंग विल बी directly proportional to refractive index. Refractive index can be denoted by n, or you can take mu as well, right? So जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसके अंदर बेंडिंग लाइट की सबसे ज़्यादा होगी. सो यू मस्ट नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑल दीज. सो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको पता है ऑलरेडी. वाटर इज हैविंग हाउ मच? You have to remember these refractive indexes as well. 1.33. सिमिलरली केरोसिन का कितना होता है? जो मिट्टी का तेल आप अपने घरों में यूज़ करते हो, केरोसिन इज हैविंग 1.44. सिमिलरली मस्टर्ड ऑयल इज हैविंग हाउ मच? 1.46. refractive index of mustard oil is 1.46, and that of glycerin is 1.74. So you can see इन चारों में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है आपके पास ग्लिसरीन का, दैट इज़ 1.74. सो उसी के अंदर लाइट सबसे ज़्यादा बेंड होगी. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. आपको बोला एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर. सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 8 सेंटीमीटर, right? That is equals to 8 centimeter. It is placed at a distance of
40 centimeter, so object distance will be minus 40 centimeter, minus because of sign convention. Then convex lens is there, convex lens की focal length आपकी पॉजिटिव होती है, you all know that. So f equals to plus 20 सेंटीमीटर. So आपको हाइट यानी कि साइज ऑफ इमेज बताना है, कितना है हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है आपको. So आपको पता है फर्स्टली आपको इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. इमेज डिस्टेंस निकालोगे तो कैसे निकालोगे इसके लिए आप, तो इमेज डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लेंस फॉर्मूला यूज करोगे आप. सो लेंस फॉर्मूला इज 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. सो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. अब वैल्यूज पुट कर दीजिए बस खाली. 1/v आपको फाइंड आउट करना है, दैट विल बी 1/f प्लस 1/u. Now do the calculation by putting the values. So 1/v will be equals to f you have 20 centimeter 1/20 plus you have minus 40 centimeter. So plus minus will be minus, so 1/20 minus 1/40. So just 1/v will come out to be, take LCM, 40 will be LCM. So 2 minus 1 that is 1/40. v निकालने के लिए आपको इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. सो v विल बी इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर. नाउ फॉर हाइट ऑफ इमेज आपको क्या देखना है, मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड इन केस ऑफ लेंस आप इसे v/u भी लिख सकते हो. आपको वैल्यूज पुट करनी है, आपको HI निकालना है खाली, ठीक है. सो लेट्स सी क्या आता है हमारा HI. सो लेट्स पुट द वैल्यू. HI आपको निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 8 दी हुई है, v आपने निकाला अभी 40 एंड u आपका है -40, राइट. सो 40 से 40 कैंसिल, तो हाइट ऑफ इमेज विल कम आउट टू बी -8 सेंटीमीटर. अगर मैग्नीट्यूड देखें तो केवल 8 है आपके पास. सो लेट्स सी वेदर 8 और -8 ऑप्शन में है. -8 इज गिवन टू यू, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. सो क्या बोल रहा है ये, 2 थिन लेंस है आपके पास जिसकी पावर दी हुई है. एक की पावर है 3 डायोप्टर और एक की पावर है -2 डायोप्टर एंड दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट. तो 2 लेंस लिख लेते हैं. मान लो एक की पावर है P1, कितनी दी हुई है 3 डायोप्टर, और एक है आपके पास दूसरा लेंस जिसकी पावर है P2 दैट इज -2 डायोप्टर. दोनों लेंसों को आपने कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है, तो आपको कॉम्बिनेशन पावर बतानी है और फोकल लेंथ बतानी है, राइट. तो कॉम्बिनेशन पावर आपको सिंपल क्या करना है, ऐड करना है एल्जेब्रिकली, यानी उनके साइन के साथ. P विल बी इक्वल्स टू P1 प्लस P2. P1 इज 3 एंड P2 इज -2, so it will be equals to +1 डायोप्टर. यानी कि आपका B और D में से कोई ऑप्शन आने वाला है. A और D तो कैंसिल हो चुके हैं. आप इसके करस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ निकाल लीजिए. फोकल लेंथ क्या होती है आपके पास, पावर इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ. दिस इम्प्लाइज दैट फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ पावर, राइट. अब रेसिप्रोकल ऑफ पावर, पावर कितनी है 1 है सिंपल. तो कितनी आ गई 1 मीटर. मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 100 सेंटीमीटर. क्लियर. और वो किस में आ रही है, प्लस में आ रही है. तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन. पावर आपकी आई 1 डायोप्टर, फोकल लेंथ आई 100 सेंटीमीटर. आई होप इट्स क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इट इज सेइंग ए स्फेरिकल मिरर टू बी मेड फ्रॉम अ कट पोर्शन ऑफ व्हाट. सो जब आप स्फेरिकल मिरर बनाते हो तो आपको एक होलो स्फेयर लेना पड़ता है. हॉलो स्फेयर के एक सेक्शन को कट करा जाता है, फिर जो आपके पास सेक्शन बनता है इस तरीके से, उसको
इनसाइड से या आउटसाइड से, इनवर्ड डायरेक्शन या आउटवर्ड डायरेक्शन से पॉलिश करके डिफरेंट डिफरेंट मिरर्स बन जाते हैं। अगर हम इसे यहाँ से पॉलिश करेंगे तो कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। अगर हम इसको बाहर से पॉलिश कर देंगे देन इट विल बी कनकेव मिरर। क्लियर? सो आपने क्या यूज़ करा, एक हॉलो ग्लास स्फीयर यूज़ करा है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा हॉलो ग्लास स्फीयर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट देयर? Option number A is correct only. It was very basic question. Let's move to the next question now. Question number 6. What it is saying? To determine the focal length of a concave mirror. एक concave mirror की focal length आपको calculate करनी है by forming image of a distant object. Distant object बहुत दूर है, like sun ले सकते हैं आप, कोई दूर से tree ले सकते हैं. The screen should be placed. आपकी स्क्रीन कैसे रखी होनी चाहिए? अगर आपने एक्सपेरिमेंट पे ध्यान दिया होगा तो अगर आपके पास डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो उससे कैसी रेज आती हैं? पैरेलल रेज आती हैं। लेट्स से आपका ये कनकेव मिरर है। सो कनकेव मिरर से आपकी रेज, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई आपकी, पोल ले लीजिए यहाँ पर, फोकस ले लीजिए और सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लीजिए। अगर रेज पैरेलल आती हैं क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से पैरेलल ही आएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। सो आपको क्या करना है, फोकल लेंथ निकालने के लिए स्क्रीन को प्रिंसिपल फोकस पे रखना है। आपकी स्क्रीन कहाँ होनी चाहिए? प्रिंसिपल फोकस पे, और इट शुड बी पैरेलल। आप देख सकते हैं बिल्कुल पैरेलल रखा है हमने स्क्रीन को, तो स्क्रीन आपकी बिल्कुल पैरेलल है मिरर के प्लेन के, राइट? सो इट शुड बी पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द मिरर, राइट? सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. So let's move to the next question. Question number 7. It is also a numerical, simple numerical. It is, an object is placed at a distance of 20 centimeter in front of concave mirror. Concave mirror दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है आपके पास? 20, और आप यहाँ पर क्या लोगे? -20, जस्ट बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, 10 सेंटीमीटर दी है, तो फोकल लेंथ विल बी -10 सेंटीमीटर. सो द इमेज प्रोड्यूस विल बी, सो सिंपली अगर आप देखा यहाँ पर कि आपने जो 2f है, जो c होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा? 2f, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। 2f कितना आएगा? -20 ही आएगा। यानी कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? c पर ही रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस c के बराबर है तो आपकी इमेज भी कहाँ बनेगी? v पर ही बनेगी। और आपको अगर याद हो इस केस में, तो अगर आप सी पर रखते हो तो सी पर इमेज बनती है और सेम साइज की बनती है, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है, राइट? तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट को आपने सी पर रखा है, सी पर ही आपकी इमेज बनेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्लियर? एंड दैट विल बी ऑफ द सेम साइज। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है और सेम साइज की है, देन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. इन ऑर्डर टू डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन. जैसे कि सन, उसकी आपको क्या करनी है? इमेज ऑब्टेन करनी है, क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से क्या होगा? जो लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी, एंड इफ दे आर पैरेलल दे विल बी फोकस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ओनली. सो उस पॉइंट का डिस्टेंस हम मिरर से मेजर कर लेंगे, राइट? सो यही होने वाला है हमारे पास. ये कनकेव मिरर है, मान लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस ले लीजिए, पैरेलल रेज ले लीजिए. पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से पास होंगी, दैट विल बी प्रिंसिपल फोकस, राइट? सो इट इज़ योर प्रिंसिपल फोकस. आप स्क्रीन को कहाँ पर रखोगे? फोकस पर ही रखोगे, जैसा कि अभी आपने एक लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, फोकस पे ही अपनी स्क्रीन को रखोगे. देन जिस पॉइंट पे आपने स्क्रीन रखी है उस पॉइंट से आपको डिस्टेंस देखना है मिरर से, यानी कि डिस्टेंस आपको फोकल लेंथ क्या किसके डिस्टेंस से मिलेगी? मिरर और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस मेजर करने से आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. Let's move to the next question. Question number 9. So which of the following lens will diverge the ray of light more? It's very interesting question.
सो आपको पता होगा कि जो पावर होती है, राइट, पावर किसी भी लेंस की दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस, राइट। डाइवर्जेंस किस में होगा? कनकेव लेंस के केस में। कन्वर्जेंस किस में होगा? कन्वेक्स लेंस के केस में। और आपको पता है कि पावर का जो साइन होता है वो फोकल लेंथ के साइन के बराबर होता है, राइट। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है आपके पास? कॉन्वेक्स लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस। एंड कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है आपके पास? नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव एंड दैट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। सो जो पावर आएगी, पावर इक्वल्स टू 1/f होता है, राइट। दोनों का सेम फॉर्मूला है। तो पावर जो होगी कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होगी, यानी कन्वर्जिंग लेंस की पॉजिटिव और डाइवर्जिंग लेंस की नेगेटिव। सो आपके पास जो पावर है डाइवर्जिंग लेंस की वो नेगेटिव है, और नेगेटिव वाले आपके पास केवल दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब उनमें से भी आपको चूज करना है किसकी पावर ज़्यादा है। नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या बता रहा है? जस्ट टाइप ऑफ द लेंस। उसके अलावा अगर आप मैग्नीट्यूड देखें पावर का, तो 0.8 वाले लेंस की पावर ज़्यादा है 0.4 वाले लेंस से। दैट मीन्स जो आपका -0.8 पावर वाला डायोप्टर वाला आपके पास जो भी लेंस होगा जिसकी पावर इतनी दी हुई है आपको -0.8 डायोप्टर, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। इट विल बी हैविंग और इट विल डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट मोर। क्लियर? इसकी डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर लेंस। सो आपको बस पावर देखनी है, जिसकी पावर ज़्यादा उसकी डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस भी ज़्यादा आएगा। क्लियर? कन्वर्जेंस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, divergence in case of concave lens. Let's move to the next and the last question of this video. We have a virtual image. Image is virtual. That means magnification का sign क्या होगा? Positive. Right? So it is 3 times the size of the object. So magnification is given +3. And it is obtained with a concave mirror. Radius of curvature this. Concave mirror is there. That means focal length is negative. For concave mirror, focal length will be negative, right? Focal length is negative. And radius of curvature is given. How much? 36. So it will be -36, right? Because they are directly proportional, same sign will be there. So you can calculate focal length because radius of curvature equals to twice of focal length. That is -36. This implies this focal length will come out to be -36 divided by 2 equals to -18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई आपके पास। अब आपसे पूछा क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको बताना है मिरर से। लेट्स सी। सो फोकल लेंथ आपको दे दी, मैग्निफिकेशन आपको दे दी, और ये मिरर है, राइट। तो मिरर के केस में आपको पता है कनकेव मिरर के केस में 6 केसेस होते हैं। 6 में से केवल एक ही केस ऐसा है जो वर्चुअल इमेज देता है आपको। कब? जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हो? बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। जब इनके बीच में रखोगे तभी आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, राइट। यानी कि आपका जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो किस रेंज में आएगा? 0 से लेकर 18 सेंटीमीटर की रेंज में आने वाला है, क्योंकि फोकल लेंथ आप निकाल चुके हो, राइट। तो आप देखो यहाँ पे 0 से 18 के बीच में कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। सो आपका एक ऑप्शन तो हट चुका है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी तीनों के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेट्स डू। सो आपको मैग्निफिकेशन पता है +3 एंड दैट इज इक्वल्स टू -v/u, राइट। ये सबको पता है ऑलरेडी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए। तो यहाँ से आपके पास अगर आप v निकालें इन टर्म्स ऑफ u, दैट विल बी -3u, राइट। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस आप मिरर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करिए। सो मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब v की जगह क्या लिखा है अभी आपने? -3u। पुट द वैल्यू। तो -1/3u
plus 1 by u. Now you can do this calculation easily. Take the LCM only. So 1 upon focal length, that is minus 18 अभी आपने निकाली है. सो यहाँ पर आप LCM क्या आ जाएगा, 3u. ऊपर क्या आएगा, -3 प्लस यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी ऊपर आएगा आपके पास प्लस -1, राइट, -1 और यहाँ क्या आएगा +3. सो इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 3u. अब आपको u निकालना है तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो 3u इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई 2 36. सो -36. So u will come out to be -36 divided by 3, and that is -12 centimeter. So object distance is 12 centimeter. So that is the answer. Option number C is the correct. So it was very simple question. I hope this video is useful to you all. अगर आपको वीडियो समझ आई हो, क्वेश्चन समझ आ गए, then please like the video, share and subscribe the channel for more interesting questions. Till then, have a good day. Bye bye.